Hello and welcome to Gen Next, a show that brings up issues which matter to Generation Next. I am Ruchika Tomar. Many years ago, Swami Vivekananda said, the way you utilize your young years shape up your years ahead. Today, we're going to be talking about Swami Vivekananda's teachings, how they're still relevant today, and also what the youth of today thinks of these teachings. To discuss all of that, we are joined by Mr. Sunil Kumar. He's a member, Managing Committee, Ramakrishna Paramhans Mission. We also, of course, have a young cross-section of audience here, right from school children to college-going children and also some professionals. We are going to be talking a whole lot of issues. But first, let me just come to you and ask you something very simple. Swami Vivekananda, the teachings that he taught, the things that he taught at that time of the century, they were very progressive ideas. How they are still relevant today? They are certainly relevant because of this very simple reason that he has given so many new ideas, and those ideas are based on eternal truths. And if we forget the eternal truths, then we keep on worrying about the changes. But the changes, behind the change, there is an eternal, universal truth. And Swami Vivekananda has given those eternal, universal truths which will remain relevant at all times. They do not change with time. There are certain things which change, but there are other things which do not change. That is the beauty of Indian culture. We divide our whole knowledge into two parts. One is Shruti, which is universal and eternal. It applies to everybody for all times to come. And the other is Smriti, which keeps on changing from time to time. So therefore, we today unfortunately get too much involved in the Smriti part and we forget the Shruti part. And what Vivekananda did was brought out the basic eternal truths which were there in the Vedas, the Upanishads and the scriptures, which was not available to all of us. We are the padhe likhe, educated generation who know nothing about our culture. That is the unfortunate part. So that is what Vivekananda did, was bring out those and give it to us in English. That is how I learnt it. I do not know Sanskrit. I have never read religion. I had nothing to do with religion till I was 40 years old. Right. So that is the idea. Right. Since this is a young audience-based show, it is a show targeted at the youth. Now, Vivekananda laid a lot of emphasis on the youth. He said young people are like wet, soft clay, and the way you spend your initial years, that will shape up the course of your life ahead. Talking about that, what role did he have in mind for the young people of any generation, for that matter, in nation building? The youth have all the vitality, the strength, and they are the bringers of change in society. The Swami Vivekananda had tremendous faith in the youth, and he always used to say, give me 100 young people and I will change the world. The whole idea was that the young people, as you very rightly said, the mind can be molded. It is like a soft clay. The younger you are, the better it is. In fact, they say that right from the day you are born, you, the mothers, that is why they say Matri Devo Bhava. It is the duty of the mother to mold the child before he starts asking and rebelling. She should give him some of these basic universal truths and establish him in daily self-development processes, by which practice of which the mind will be guided in the right direction. That responsibility of the mother we have lost in today's society in the name of education and secularism and whatnot. And that is why this problem is coming, that people are becoming educated, but they are not becoming good people. Right. Let's talk about things in today's context. If we see in today's time, Swami Vivekananda taught Daridra Narayana Bhava. If you want to serve the God, you serve the common people, you serve the masses. आज के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखिए तो कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये देखने को मिलता है कि लोग आपस की सेवा भाव में, हम जानते हैं ऐसे भी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं जो वैष्णो देवी या किसी तिरुपति जाके भगवान के सामने चढ़ा देते हैं करोड़ों रुपए का, पर लोगों की सेवा की जहाँ तक भावना आती है वो देखने को कहीं कम मिलती है. Yeah, that is very right. This is the misuse of or misunderstanding of religion, and religion is not just rituals. Religion, that is what the Shruti part is, and that is where Swami Vivekananda was trying to emphasize and trying to tell us that focus on the Shruti. That is the idea of how to develop, change the mind, how to develop willpower, how to develop powers of concentration. Now those things are not taught in our education system. Although if you see the modern UNESCO के जो guidelines हैं, जो education policy है, उसका पहला
word. One is learning the treasure within. Now, what is the treasure within? That is the basic theme of Swami Vivekananda's work. Then learning to be, learning to live together. Now, if we are not taught in the school, how will the children or how will the children when they grow up and become leaders, वो फिर जो आप बोल रहे हो वो कैसे छोड़कर दूसरों की सेवा क्यों करेंगे? बिकॉज किसी ने उनको बचपन में ये बात सिखाई नहीं है, उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और ये रामाकृष्ण ने जो विवेकानंद को जो पहले बार उनकी जो मुलाकात हुई थी और उसके बाद उनकी जब दोस्ती बढ़ी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रामाकृष्ण ने अपने डिवोटीज को दिया था। एंड ही सेड दैट it is not compassion, it is not daya to people, it is to serve God in man. Now that is the training which the school is not giving. We are removing this word God, we are removing the God ना भी बोले, infinite divinity बोले, infinite potential बोले, infinite energy बोले, वो हमारे अंदर है. It is hidden. How to bring it out? Now should we not teach this to the children? तो आज की अगर आज के उसमें समीक्षा में देखें हम, आज जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, जिसमें हमको आर्य समाज भी पढ़ाया जाएगा, रामकृष्ण परमहंस मिशन भी पढ़ाया जाता है, पर कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी लैक करते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी शायद हम जो वर्ल्ड को टीच करते हैं, जिसके लिए इंडिया को इतना माना जाता है। जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ था, स्वामी विवेकानंद वहां गए थे, तो अमेरिका में पहली बार हिंदुइज्म को शायद पहचान पाए थे लोग और समझ पाए थे कि हिंदुइज्म क्या रिलीजन है, इसका क्या मायना है। पर कहीं ना कहीं मौलिक रूप में हम अपने ही देश में, अपनी ही शिक्षा में इन चीजों को उतार नहीं पाए हैं। ये बड़ा करेक्ट है कि उतार नहीं पाए, और उसका रीजन है, और बड़ा अच्छा रीजन है। अगर आप मुझे टाइम दें थोड़ा, महात्मा गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन गए थे 1931 में, ही मेड अ स्टेटमेंट। ही सेड व्हेन द फॉरेनर्स केम टू इंडिया, they uprooted the beautiful tree of Indian system and allowed the tree to decay and die. Instead of that, they should have developed or nurtured the existing system. And he gave two examples. One was the teaching Gurukul, the other was Vaidya. He said कि इन दोनों को अगर हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते, नर्चर करते, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वो भी सिखा देते, तो they were the men of wisdom, they were men of त्याग and सेवा. Therefore, they could have been good Vaidya, good doctors today. जी, हम अपने ऑडियंस के पास भी जाना चाहेंगे और पूछेंगे इनके पास क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहेंगे? बैठ के पूछिए, अपना सवाल बैठ के पूछिए। शिक्षा का प्रसार प्रचार अति आवश्यक है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। लगभग 100 वर्षों के बाद भी अभी पूर्ण साक्षरता हमारे देश में नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण दो हैं। जैसे कि मैं जो महात्मा गांधी की बात कर रहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह से आप स्कूल चाहते हो कि बिल्डिंग होगा, प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होगा, टीचर होगा, इंडिया इज ए पुअर कंट्री। और मैं, गांधी जी बोल रहे हैं ये, कि मैं चैलेंज करता हूँ कि अगले 300 साल में भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में इतनी पैसा नहीं है इन सब करने का। हमारे जो गुरुकुल होते थे, विद्या जो दी जाती थी, वो एक पेड़ के नीचे एक गुरु बैठता था, आसपास मोहल्ले के जो लोग होते थे सब वहीं आते थे, उनको वहीं पढ़ाया जाता था। और वो क्या पढ़ाया जाता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो हमको आज पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाया जाता था। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जो भी तुम्हारा व्यवसाय है, उसके बारे में उनको हेल्प किया जाता था। तो अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है। और एक और प्रॉब्लम इसमें आता है, अगर हम सबको लिटरेट बना भी दें तो उससे क्या फायदा होगा? मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूँगा कि अभी भारत में पढ़े लिखे ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 8% लोग हैं। 92% लोग हमारे ये कोट पैंट और अंग्रेजी सिस्टम में नहीं है। तो भारत किसकी वजह से चल रहा है? हम समझते हैं कि हमारी वजह से चल रहा है, नहीं, जो 92% जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से चल रहा है। हम लोग पढ़ लिख कर फिर नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। अगर हमको नौकरी, हमारा जो कारीगरी थी वो खत्म हो गई, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आया, इट हैज मेड अस प्योरली जॉब सीकर्स। तो सबको साक्षरता देने की जरूरत नहीं है, सबको अपना जो जीविका के जो हमारा जो व्यवसाय का जो सिस्टम है वो बाद में आता है। पहले आता है अपना अंदर की शक्ति को पहचानो, ये जानो कि मेरा क्या स्वधर्म है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरे क्या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अभी क्या है, एजुकेशन सिस्टम के बाद हम लोग यूजफुल पर्सन नहीं रह जाते। ये बड़ा भारी एक प्रॉब्लम है। इसका कोई मेरे पास आंसर नहीं है, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सरकार के पास पैसा नहीं है, और अगर जिसको पैसा देंगे भी
तो वो टीचर्स ऐसे नहीं हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते जी, हैं। एक बहुत बड़ी आयरनी है सिस्टम में। इसके अलावा हम और भी मुद्दे पर बात श्रीमान करेंगे। जी, जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आज के इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर व्यक्ति जो है इन्हीं सभी मान्यताओं पे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चलता है तो वह कहाँ स्टैंड करेगा? आज कंपटीशन का युग है, कोई जो है साइंटिस्ट बनना चाहता है या जो कोई अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, इवन कोई अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता है। मान लीजिए मैं एक पॉलिटिशियन बनने जा रहा हूँ और मैंने सारे एथिक्स जो विवेकानंद ने बताए हैं सारे युग है, 5 ही उनको लेकर के मैं चलता हूँ, तो मैं हर जगह मात खाऊंगा। मैं कहाँ से अपने आप को ऊपर उठाऊंगा इसमें, अगर मैं इसकी नैतिकता को लेकर चलता हूँ तो? नहीं, तो ये आपने ये स्पिरिचुअलिटी का हम लोगों ने पूरा गलत मतलब निकाला है। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रिचुअल, इट डज नॉट मीन नैतिकता ओनली, इट मीन्स ओनली, आई विल गिव यू वन सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। द एबिलिटी टू थिंक, प्लान एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म गुड। अभी लड्डू एक मिलेगा, अगर आप रुको तो आपको 4 दिन के बाद 2 लड्डू मिलेंगे। तो ये जो दूर दृष्टि होनी चाहिए, ये आजकल के ज़माने में ख़त्म हो गई। हम इमीडिएटली ढूंढ रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल लाइफ में नहीं मिलता। जो भी हमको लाइफ में चाहिए उसके लिए हमें को काम करना पड़ता है। बिना काम किए हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि वी हैव नो फ्री लंचेस। So therefore we have to struggle, we have to strive, and we have to struggle and strive in such a way that जो हमारा स्वधर्म है, हमारे जो टेंडेंसीज हैं, उससे हम आगे बढ़े। इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग का जमाना है, तो शायद आज के युवा की अपेक्षा भी यही है कि जो भी वो लर्न करते हैं, जो भी वो मैसेजेस लेते हैं, उसका वो साथ की साथ जिंदगी में क्या सार निकाल पाए, शायद यही कोशिश रहती है। और सवाल लेंगे, जी पूछिए। आज मध्य वर्ग स्वार्थी नहीं हो गया है कि विवेकानंद के उस कथन को भूल गया है कि उन्होंने कहे थे कि मैं प्रत्येक भारतीयों को उस समय तक देशद्रोही समझूंगा जब तक कि वो गरीब और मेहनत कश के कमाई पर शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन उनके बारे में एक भी बार नहीं सोचते हैं। तो क्या हम इससे मध्य वर्ग की स्वार्थ मतलब नहीं झलकता है? नहीं है, मैं तो आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, दैट इज व्हाई विवेकानंद का कहना था कि जो बड़े लोग हैं उनको तो अपना आराम से कंफर्ट में बैठे हुए हैं, तो जो नई पीढ़ी है उसका दायित्व बनता है कि ये समाज का सिस्टम चेंज करे। एजुकेशन सिस्टम शुड क्रिएट यूजफुल पीपल हु आर एम्प्लॉयबल। अभी जो हमारे मॉडर्न पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़कर आपको कौन सी नौकरी मिल जाता? आप किसी लायक नहीं हो, कोई आपको नौकरी देने को तैयार नहीं है जब तक कि आप फिर 4 साल उसके साथ कोई ट्रेनिंग न लो। और तो इस तरह से हमको थोड़ा सा सोचना है। महात्मा गांधी का कहना था कि वो एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीविका चला सके, जिससे हम अपने पैरों पर खड़ा रखें। अभी हम 20 साल तक तो पढ़ते हैं, उसके बाद 24 साल तक नौकरी ढूंढते हैं, तो हमारा जो सारी जिंदगी तो खत्म हो गई नौकरी ढूंढने। हमने किया क्या? तो ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन हम लोगों को ढूंढना है, आप लोगों को ढूंढना है। आई सेड कि लॉन्ग टर्म गुड ये सोचना है। लॉन्ग टर्म गुड क्या है, शॉर्ट टर्म प्लेजर क्या है। जी, हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, हमें नौकरी भी मिल गई, पर शायद we have stopped sparing a thought for those who do not have what we have. Let's take another question here. जी पूछिए। मेरा कोई सवाल है कि विवेकानंद जी अधिकतर धर्म की बातें करते हैं, तो वर्तमान में धर्म का क्या रूप है? क्या अफीम बन के नहीं रह गया है? और उस वेद की बात करते हैं जो समाज को पीछे ले जाता है, और अपने समय में भी शोषण पर आधारित व्यवस्था कायम किया था। तो वही व्यवस्था क्या विवेकानंद को मानकर हम चले कि वही व्यवस्था हम अपना ले तो अच्छा हमारा समाज बदल जाएगा क्या? प्रिमिटिवनेस की बात करते हैं कि वेदास पे वापस ले जाने की बात कर रहे हैं, बैक टू बेसिक्स ले जाने की बात कर रहे हैं, इससे कहीं सहमत नहीं होते। धर्म का मतलब क्या है ये हमने इस आजकल के आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी में ये टोटली मिसअंडरस्टूड। बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट रिलीजन वी हैव फॉरगॉटन द बेसिक्स। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलीजन? सिंपली विवेकानंद ने जैसे जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर, सबके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है। उस इन्फिनिट पोटेंशियल को मैं कैसे बाहर निकालूं, दैट इज व्हाट इज टू बी डन। अगर हम पोटेंशियल को बाहर नहीं निकालेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, फिर बोलेंगे हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और दुनिया में ये खराबी है, वो खराबी है, वो धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का मतलब ही यही है, कैसे जो हमारे अंदर की जो अनंत शक्ति है, हाउ डू वी ब्रिंग इट आउट। एंड स्वामी जी सेज कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, देयरफॉर द गोल is to manifest this divinity, perfection within, which is within us. How do you do that? By controlling the mind, developing powers of mind, powers of concentration. जब तक हम ये सब करेंगे नहीं, how do we develop? So therefore we cannot blame religion for all the ills of society. It is only the misunderstanding of religion.
हमने कभी अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की है, मेथड सीखे हैं? और अदरवाइज एक के नंबर आते हैं 90%, एक के आते हैं 40%, वो क्या तो भगवान ने किया या रिलीजन ने किया या धर्म ने किया? We will continue our discussion on understanding of teachings of Swami Vivekananda, but it's time for us to go in for a short break. Before I go in for a break, let me just remind you, you can participate on our show. All you really need to do is just SMS us, type GNR, leave space, and send it across at 676733. See you on the other side of the break. Welcome back. You're watching Gen Next, and we are discussing the teachings of Swami Vivekananda's. How relevant are they in today's day and age? Mr. Kumar, we were talking about religion and politics. These are two important things in our system. Well, then again, Swami Vivekananda said religion and politics, religion and state should be kept apart. The government should be kept apart. But this is not what we see in today's scenario. How different are things, and why are they different? Of course, why is lack of education? That is, why is very simple, because we are never teaching these things to the young people or to the adults, therefore the problem will always remain. Now, there are two very important things to be here. The father of nations, Mahatma Gandhi, was a spiritual person. Daily he used to have bhajans, and in the bhajan he would have all the different religions, prayers were there. So what was he was practicing spirituality, and he was trying to bring all different religions in one platform. Today we are dividing people in the name of religion, we are dividing people in the name of politics. The idea of Vivekananda was to bring them together. That is why when he spoke in Chicago Parliament of Religions, within 2 minutes, 7,000 people stood up and clapped. What did he say? He just said, sisters and brothers of America. What was the message that people received from this 2 sentences, 2 words? The message was that we are all belonging to one family. That was if we understand this idea, and that understanding is not there in the body level, it is not there in the mind level, it is deep within me, my soul, Atman, spirit, God within, jo bhi aap uska naam dein, but there I am equal, one with everybody. But if I have never trained the children to go inwards toward that divinity, toward that source of our being, how will they become good to others? Therefore, in the UNESCO, they have talked about learning to live together, learning to live in peace. They have brought out these books, and they are talking about meditation. They are talking about prayers. Now, this is what if politicians are not. What they are doing is they are removing from the school system all talks about prayers, all talks about meditation, all talk about working for the good of others. It is never being taught. So therefore, the problem is there. Right. क्या सर खाली उनका जन्मदिन मनाने से हम उनके आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इसके नहीं। लिए कुछ और करने की जरूरत है। दैट इज वाई हमारे इंडियन कल्चर में 2 वर्ड बड़े अच्छे हैं मुझे, साधना एंड स्वाध्याय. दैट मीन्स अगर हम डेली, इफ आई डू नॉट स्पेंड 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर इन प्रेयर्स, इन मेडिटेशन, इन डेवलपिंग माई लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ लाइफ. दैट इज वाई आई सेड कि द स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन इज the ability to think, plan and act on the basis of long-term good. Now, how do we do that? Unless you inculcate the habit in the children from a very young age to make a daily timetable, make a weekly plan, then think about 1 year goal, 2 years goal, 5 years goal, 10 years goal. Moment you ask the question, what is your 100 years goal? Moment you start asking this question, people start becoming spiritual. Therefore, we should encourage people in the school to think about these things. We should provide at least 1 hour, at least once in a week, where children pick up a good book, read together, discuss about it, understand it. Because to understand, to imbibe these ideas, you need Shravan, that is the hearing part. That is not taking place anywhere in any society today. Then there is Manan. Simply listening from one ear and taking out from the other ear is of no use. It has to be imbibed in my, and therefore I must think about it, reflect, ask questions, remove doubts, go on asking questions, not one day. Throughout life, daily we have to do that. That is why it is not happening. Therefore, and then comes implementing in the character. That is the Nidhi Dhyasan part. So, Shravan, Manan, Nidhi Dhyasan. No religion can tell us that you should kill people or do this or do the wrong thing. But if you do not teach it in a common school atmosphere, in academic atmosphere, religions will keep on dividing people. Politics will keep on dividing people. They are not interested.
That is why it is for the youth, for the young people today, to bring these ideas into the mainstream education system, forcing your parents, go on Gherao and say, I want to read, I want time for this. Where is the time? I am going to the school the last 6 years. Everybody is interested, teachers are interested, principal is interested, school is interested, parents are interested. But they say, sir, where is the time? That's right. हमारा syllabus है, हमारा ये है, हमारा वो है. So that is the problem. Sadly, the reality is more and more goals and dreams are becoming self-oriented, self-gratifying. That's the sad reality of it. जी, पूछिए अपना सवाल. स्वामी जी ने हिंदू धर्म के पक्ष में ये चर्चा की है कि ब्रह्म वेद ब्रह्म है भक्ति, या जाना तुम्ही है जाई. ईश्वर को जानना ही ईश्वर हो जाना है. ईश्वर को जानने का रास्ता योग है, और योग की दौड़ में हठ योग तो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन राजयोग, प्रेम योग, भक्ति योग काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं. इस पर आपको क्या कहना है? मैं इसको सबसे कर्म योग भी है, और योग के पहले प्रॉब्लम क्या है, अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग योग की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं करते. So therefore, before we talk about karma yoga, we must talk about karma. Are we performing our duties? Are we aware of the duties, first of all? Are we providing quality and excellence in whatever we are doing? अगर हम जो quality और excellence नहीं करेंगे, duties अपनी fulfill नहीं करेंगे, there is no use talking about religion, because that is we are far away from spirituality. Spirituality starts only if you are a professional, if you are that is why स्वामी जी का जो 4 साल उन्होंने अमेरिका में स्पेंड किए, क्यों किए? तो वहाँ के लोग प्रोफेशनल हैं, वर्क में दे आर मच मोर एक्टिव, एक्सीलेंस, क्वालिटी. अगर आप लाइफ वहाँ देखेंगे कंपेयर टू लोग, हमारा इंडिया पॉवर्टी क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट इवन डूइंग अवर ड्यूटीज. फॉरगेट अध्यात्मा. दैट इज व्हाई स्वामी जी ने एक जो आपने एक सवाल पूछा था बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड, कि स्वामी जी सेड कि लर्न टू प्ले फुटबॉल फर्स्ट, बी गुड इन फुटबॉल. Because idea that unless you are physically strong, you have tremendous rajas, tremendous ambition, tremendous drive. ये सब चीजें पहली हैं. Unless you have a burning desire to excel in your professional field, forget spirituality. There is no spirituality for you. So therefore, there is no use talking about religion unless I am good in my work. Either whether cricket है, चाहे football हो, चाहे. In fact, one more very interesting which स्वामी जी ने statement दिया था. One person wanted to learn meditation. तो स्वामी जी पूछा को झूठ बोलना आता है? नहीं, स्वामी मजाक नहीं करो, मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ. डू यू नो हाउ टू चीट? नो स्वामी जी, आई एम ए वेरी गुड पर्सन. He said, first go out into the world, learn to cheat, learn to do something, achieve something in the world, then talk about adhyatma. So that is the problem. India में we are all in the state of tamas. So tamas से जब रजस में हम लोग उठते हैं, there are 3 stages of development. Tamas is the lowest, then rajas, ambition, drive, desires, fulfill करना, and then sattvic. So therefore we are at the level of tamas, and therefore we are rising up now. For 1,000 years we were slaves. The people have tried to remove all our cultural heritage. They have spoiled all those traditions that we had, culture that we had, which is all gone. And we have all become Angrez. But in this Angreziyat, we have forgotten the excellence in work, the professionalism that they are exhibiting. Therefore we have to rise to that level, then we talk about spirituality. Right. That is the idea. विवेकानंद जी ने कहा था कि हम वर्षों से अमृत का जो घड़ा है वो अपनी पीठ पे ढो रहे हैं, लेकिन लोगों को नाली का गंदा जल देते हैं. तो क्या ये 8% लोग जो है, ये 92% लोगों को जो अमृत है वो देना नहीं चाहते, इसी की वजह है या कोई और कारण है? नहीं, अब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेसिक यही है कि अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, सारा जो भारत का जो प्रॉस्पेरिटी है वो हम ही लोग खा पी जाते हैं. करप्शन में कर दिया, ये कर दिया, अपने पास अपने बैंक बगी. तो ये इंडिया में भी नहीं, अमेरिका में भी यही हो रहा है कि जो रिच हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं. तो ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी था, उससे पहले कम्युनिज्म था, ये सब ब्रेक हो गए. हमारा जो इंडियन कल्चर में था उसमें वासुदैव कुटुंबकम बोला जाता था. उसमें आइडिया ये था कि बचपन से हमको ये इमोशनल मैच्योरिटी, EQ जो वर्ड आया है आजकल, SQ एक वर्ड आया है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. व्हाट डज इट मीन? इट मीन डायरेक्शन कहाँ है, आपको जाना इधर है कि इधर है, कलकत्ता जाना है कि बम्बई जाना है कि हिमालय जाना है, कहाँ जाना है, ये तो पहले बचपन में पढ़ाया नहीं जाता है. फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं. तो फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर मुझे डायरेक्शन जब नहीं मिलेगा, मेरी विवेक बुद्धि किसी ने जागृत नहीं की, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? ये प्रॉब्लम है, और ये इसको कौन चेंज करेगा? ये डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल भी नहीं है. बिकॉज भारत के इतिहास में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है.
विवेकानंद जी ने भी वही बात सभी के सामने रखी। हमने आज की तारीख में नारी का सम्मान करना तो नहीं सीखा, लेकिन अंग्रेज फूट डालो राजनीति करो जो सिखा गए थे उसको अवश्य सीख लिया है। तो ये हम कैसे बदल सकते हैं, हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे सम्मान की भावना हमारे अंदर आए और जो लोगों का अपमान करने की जो भावना घर कर गई है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अब कैसे दूर किया जाए, ये तो स्वामी जी ने एक बार वुमेन के प्रॉब्लम जब डिस्कस कर रहे थे तो स्वामी जी बोला कि क्या मैं वुमेन हूँ कि मुझसे पूछ रहे हो, ये तो वुमेन को डिसाइड करना है कि क्या करना है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सोसाइटी का नर्चरिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजकल के ज़माने में। पहले ये मदर्स की डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब मदर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना ख़त्म कर दिया। अब हमने स्कूल को ये पास ऑन कर दिया। स्कूल को आपके बच्चे से क्या इंटरेस्ट है बताइए। जब मदर को इंटरेस्टेड नहीं है, फादर को इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, मदर फादर दोनों को काम करने चले गए, बच्चा टीवी के पास रह गया या नौकर के पास रह गया, तो वो उसका कल्चर कौन देगा। आज की रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप द शो, पूछिए। सर, ये जो मेडिटेशन की बात स्वामी जी करते हैं, आजकल हम लोग इतना अपना गृहस्थी के चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या इसका हल हो सकता है कि मेडिटेशन भी कर सकें और अपनी गृहस्थी को भी अच्छी तरह से चला सकें। मेडिटेशन में जो सिंपल वर्ड है, एक वर्ड है जप योग, दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ ए होली नेम ऑफ गॉड। द होली नेम ऑफ गॉड कैन बी ऑफ एनी रिलीजन। ऑल रिलीजन्स टॉक अबाउट दिस जपा, रिपीटेशन ऑफ ए होली नेम ऑफ गॉड। उससे माइंड का एक नया संस्कार हम डालते हैं। देयरफॉर दैट कैन बी डन। आप चलते फिरते कहीं भी जाओ, उसमें आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन विद आईज ओपन भी हो सकता है। जब हम दूसरों का हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, एम आई सीइंग गॉड इन हिम, एम आई ऑफरिंग हिम सर्विस एज शिवा, दैट इज मेडिटेशन विद आईज ओपन। सो मेडिटेशन इज नॉट ओनली विद आईज क्लोज। सोते जागते तो एक है। मिस्टर कुमार, बिफोर वी रैप अप द शो, वन लास्ट वर्ड आई वांट टू टेक फ्रॉम यू। बड़ा आसान है किताबों में इन टीचिंग्स को पढ़ना, फिल्मों में हमने देख लिया, गांधीवाद को गांधीगिरी की तरह दिखा दिया है आज, पर आम लोगों की जिंदगी में इन टीचिंग्स को उतारना कितना आसान है। स्पिरिचुअलिज्म की बात करना, हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए इसको फॉलो करना डेली लाइफ में। एक आम इंसान के लिए कितना आसान है इन टीचिंग्स को अपनी डे टू डे लाइफ में उतारना? बहुत आसान है। विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विवेक बुद्धि हमको जागृत करनी चाहिए। इनफैक्ट दैट इज व्हाई बचपन से अगर हमको मदर एक अच्छे हैबिट में डाल दें, सुबह उठकर नहाना है, अच्छी किताब पढ़नी है, ये अगर हमारी हैबिट बन गई तो ये हमको कितना 10 मिनट टाइम भी हम नहीं दे सकते क्या? तो टाइम की कमी नहीं है, विल की कमी है, इच्छा टाइम की कमी नहीं है, विल की कमी है। टाइम की कोई कमी नहीं है। Let's hope these teachings don't just remain in the textbooks and everyone follows it in their daily life. Thanks indeed for joining us, Mr. Kumar. Well, that's all we have in today's show. But if you want to participate on our show, I told you it's very simple. You just need to SMS us, type GNR, leave space, write your name and address, and send it across to 676733. You can also post in your suggestions to us. Our postal address is Gen Next, room number 76, DD News, CPC, Khelgaon, New Delhi 49. You can also email us. Our email ID is gennext@dd.nic.in. See you next week. Till then, take care. Goodbye.